Welcome you all in my channel. Today we will study about the tissues. Class 9 chapter number 2 biology lectures. We will study about the different things. First about the plant tissues and then we will study about the animal tissues. Now what are animal tissues? They are divided into two categories, meristematic tissues and permanent tissues. Now meristematic tissues are divided into three: apical meristem, intercalary and lateral meristem. Fine. While the permanent tissues are divided into two types, simple permanent tissue and complex permanent tissues. These simple permanent tissues are divided into further three types, that is parenchyma, sclerenchyma and sclerenchyma. ठीक है? And this parenchyma is divided into two categories, that is sclerenchyma and erenchyma. While the complex permanent tissues are divided into two, that is xylem and phloem. Xylem and phloem. While xylem is divided into four types, that is tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. Phloem is divided into further four types, that is sieve tube, companion cells, phloem parenchyma, phloem fibers, etc. Now starting the chapter with the definition of tissues, here we go. Group of cells which are similar in appearance and perform a specific function. Those cells which look like and they perform a simple function or they perform a similar function, they are known as tissues. For example, we are talking about the liver cells. All the liver cells are look-alike and all of them have the same function. They perform the function of absorbing the fat, right? So yes, moving on the next topic, we will study about the meristematic tissues, apical and intercalary and lateral meristem about in this lecture further. So tissues में हम meristematic tissues के बारे में पढ़ें तो what is the meristematic tissues? Meristematic tissues are those tissues which are always in rapid phase of division. Those tissues are in rapid phase of division are known as meristematic tissues. What are the characteristics of these? So they are always in the state of division. Hence, this is the first characteristic of them. They have dense cytoplasm. इनके सेल में बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म बहुत गाढ़ा होता है. They are very dense. रीज़न अभी बताएंगे. इनका प्रोडोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है. इसलिए होता है क्योंकि भाई अगर इनके में न्यूक्लियाई नहीं होगी तो डिवीजन का फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा. अभी हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा कि न्यूक्लियस ही हमारा क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है ना. न्यूक्लियस में क्रोमैटिन होता था एंड दैट क्रोमैटिन condense to form chromosomes and they go on the division for the nuclei, right? We had studied in chapter number 1. And they have the thin cell wall. Since हमें division करना है तो उनके में बहुत सेल वॉल भी बहुत पतली होनी चाहिए क्योंकि डिवीजन इजीली हो जाए, राइट? इनके में डेंस साइटोप्लाज्म इसलिए होता है क्योंकि अगर डेंस साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो इनको न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत कम मिलेगा. इफ़ न्यूट्रिएंट कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो कोई भी सेल डिवीजन शो नहीं कर सकता. दैट्स वाई दे आर हैविंग द डेंस साइटोप्लाज्म. दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे आर लैक ऑफ वैक्यूल. Why they are lack of vacuole? Because they are in dividing phase and they cannot perform the function of storage. अगर ये function storage की perform करते रहेंगे तो ये divide कब होंगे? Question arises here. So this is very very important point that you must all have to know about. And one point is noted here that you should take the quick screenshot about this. This will help you in your school examination. Now moving toward the next topic, that is type of meristematic tissues. I had written meristem. This is also the name. On the basis of the location, meristematic tissues are divided into three: apical, intercalary and lateral, right?
सो एपिकल मेरिस्टम क्या होता है कि एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट, किसी भी प्लांट के टिप पे, ऑल, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो रूट हो, हर जगह के टिप पे प्रेजेंट होने वाला टिश्यू इज नोन एज एपिकल मेरिस्टम. While this is help in recognizing the increasing length and of the stem and root, because ये हमारे ग्रोथ में हेल्प करते हैं. बेसिकली ये ग्रोथ, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, आई मीन लैटिट्यूडनल ग्रोथ के ऊपर ये डिपेंड करते हैं. हमारे प्लांट को इंक्रीज हाइट देते हैं. फाइन. सो इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है? अभी इंटरकैलरी मेरिस्टम देख लेते हैं थोड़ा सा, कि दे आर प्रेजेंट द बेस ऑफ लीफ और इंटरनोड, ईदर साइड ऑफ नोड. जो हमारे लीफ में नोड्स होते हैं ना, दे आर प्रेजेंट ईदर साइड, चाहे ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, दे आर प्रेजेंट ईदर साइड ऑफ द नोड, ऑन द ट्विंग्स टू, ये ट्विंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं. एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट. दे आर लॉन्गिट्यूडनल, ये लैटिट्यूडनल के लिए होते हैं ये एपिकल वाले, और ये लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूड मतलब साइड वाला, और ये अप साइड वाला. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लेटरल मेरिस्टम. लेटरल मेरिस्टम क्या होता है? इसी को हम केबियम भी कहते हैं, इसको हम केबियम भी कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एज द CBSE हैज चेंज्ड the pattern of class 9th and 10th. They had also introduced the 1 marker question for them, so this is very important term for them. So they are present in the side of stem root, ठीक है, and they help in increasing the girth of the plant. अभी देखो, let's say this is a plant, let's say, and this is your node. Fine, this is your नोड. फाइन. एंड इधर वाले, इस वाले रीजन में हमारा जो भी टिश्यू होगा, दिस इज योर एपिकल. फाइन. दिस साइड, यहाँ पे जो हमारा गिर्थ है, दिस साइड जो प्रेजेंट होंगे वो ये प्रेजेंट होगा. एंड वाइल ये नोड है, डैश इज नोड, तो इधर ईदर साइड ऑफ नोड्स, ईदर साइड ऑफ नोड इज प्रेजेंट विच इज इंटरकैलरी. राइट, आई जस्ट राइट इंटर, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. फाइन. नाउ दिस इज द very important term, that is differentiation. Differentiation is a process by which all the cell or tissues attain a specific function, structure or functions. मतलब, आई विल एक्सप्लेन. द प्रोसेस ऑफ सेल, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल या टिश्यू कोई भी एक डेफिनेट शेप, डेफिनेट स्ट्रक्चर, डेफिनेट फंक्शन अडॉप्ट कर ले, दैट इज नोन एज डिफ्रेंशिएशन. जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अगर एक टाइम के बाद वो भी तो डिवाइड करना छोड़ देंगे, जब वो छोड़ देंगे तो वो कौन से टिश्यूज बन जाएंगे? वो परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे. तो दिस प्रोसेस, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस पे जाते हैं तो वो परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं. दैट्स व्हाई दिस हैड रिटन द मेरिस्टेम अंडरगोज द डिफ्रेंशिएशन टू फॉर्म द परमानेंट टिश्यूज, एंड दिस इज व्हाई दिस differentiation process is just seen in the meristematic tissues, not in permanent tissues. Okay, I thought that you all understanding the video and you all are enjoying the video. If you are enjoying, then hit the like button and also subscribe the channel if you are new on this channel. Now moving toward the permanent tissues. Permanent tissues are those tissues which are made up of single type of cells. They are made up of single type of cell or multi type of cell. अब देखते हैं. Simple permanent tissues are those tissues which are made up of single type of cell, right? These are made up of single type of cell. Fine. Now simple permanent tissues are divided into 3 types, that is parenchyma,
sclerenchyma and collenchyma, right? Parenchyma present at the cortex or pith of the stem, and they are present the mesophils. What is mesophils? जो हमारे लीफ का जो कलर होता है, जहाँ से उसको कलर मिलता है, दैट इज नोन एज मीसोफिल्स। इसी मीसोफिल्स में ही हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज written that this is present the mesophil, right? And next we will study कि what is chlorenchyma and अच्छा, the function, this function also. What is the function? Function क्या है? The function of parenchyma is कि it is a basic packaging unit. This is a packaging unit. It helps in storage of food, right? And store the water, nutrient in the stem or root. देखो यहाँ पे ये हमारे पेरेंकाइमा का एक स्ट्रक्चर भी बना रखा है, ये इसकी सेल वॉल है। ये जो हम सैप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे जो होल दिख रहा है, बेसिकली दिस इज द इंटरसेलुलर स्पेस। ये हमारे कुछ इसी टाइप में पेरेंकाइमा प्रेजेंट होते हैं हमारे पेरेंकाइमा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस होता है इन पे, ठीक है। एंड हमारे इनका वैक्यूल देखो कितना बड़ा सा वैक्यूल इनका दिख रहा है। दिस इज योर वैक्यूल। प्लांट टिश्यू है, हमने चैप्टर नंबर 1 में ही देखा था कि प्लांट टिश्यू में 90% ऑफ वैक्यूल ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है। न्यूक्लियस बहुत साइड में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे सेल वॉल है तो डेफिनेटली सेल वॉल भी होगी। देखो ये सेल वॉल है जो इतनी थिक सी दिखाई दे रही है, दिस इज योर सेल वॉल, फाइन। ये ऐसे ही इतने लंबे लंबे में होते हैं, इसीलिए इनको हम पैकेजिंग यूनिट भी कहते हैं। यहाँ पे स्टोरेज ऑफ फूड भी हो जाती है, इनमें वाटर न्यूट्रिएंट भी स्टोर हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये भी जगह है, ये भी जगह, तो ऑब्वियसली स्टोर हो जाएगी, राइट। अब हम पेरेंकाइमा के बारे में दो चीज़ें पढ़ेंगे, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा, ठीक है। क्लोरीन मीन्स क्या होता है? क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल। जो चीज़ हमारे लीफ में प्रेजेंट हो, जो क्लोरोफिल में प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज क्लोरेनकाइमा। So parenchyma which consist of chlorophyll help in synthesis of food. They are known as parenchyma, right? Chlorenchyma. So अभी हमने देखा था कि वो लीफ के मीसोफिल्स में प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा था कि मीसोफिल्स में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो मीसोफिल क्या है? जो हमारे किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को कलर दे। हमारे बॉडी में भी होता है, उसी तरह से प्लांट के बॉडी में भी होता है, तो उसमें मीसोफिल कहते हैं, राइट। पेरेंकाइमा में जो भी पेरेंकाइमा हमारे क्लोरोफिल के पास या क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल जिस पेरेंकाइमा के अंदर होती है, दैट इज नोन एज क्लोरेनकाइमा, फाइन। और यही हमारे फूड के सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। अब एरेनकाइमा देख लेते हैं। एरेनकाइमा का पहले तो एरन मतलब होता है एयर, तो दोज पेरेंकाइमा contain air cavity in the cell and provide the buoyancy to the tissue and help them in floating are known as parenchyma। अभी buoyancy आपने पढ़ी नहीं होगी, फिर भी एक हिंट देती हूँ। देखो लेट सपोज ये हमारा यहाँ पे आपने कोई चीज़ डाली, तो आपने ये तो सुना होगा कि देयर इज एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर आप यहाँ से कोई चीज़ डालोगे तो यहाँ भी फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली। जब यहाँ फोर्स लगेगा तो एक अप साइड भी फोर्स लगेगा। तो ये अप साइड फोर्स लगता है, इसी को हम बायंसी कहते हैं, फाइन। और आपने देखा होगा कि लोटस वगैरह जो के प्लांट्स होते हैं वो हमारे एयर में वाटर में वो फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं, राइट। दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ बायंसी, क्योंकि पानी में तो कोई भी चीज़ जाके सिंक कर जाती है, पर हमने समटाइम देखा कि वो कई चीज़ फ्लोट भी करती है। वो क्यों फ्लोट करती है? क्योंकि वो वहाँ पे बायंसी मतलब बाइंड फोर्स एक्ट करती है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन से आपको क्लियर हो रहा होगा कुछ कुछ। दिस विल यू लर्न इन द फिजिक्स चैप्टर, यू विल लर्न इन योर फिजिक्स चैप्टर क्लास 9th ऑब्वियसली। This all for today. You will study, now we will study about next topics about their chlorenchyma, sclerenchyma, also xylem, phloem, etc. There are so many types.
we have to study in this chapter. Now we will study about different type of things. If you enjoy the video, then you can like, share and subscribe the video if you are new in the channel. Otherwise you can, if you face any query, anything, then you can ask in the comment section. If you don't like the video, you can press the dislike button. It's completely fine. Hope you like the video, hope you understand all the things may be clear to you. Thanks for the lecture. Thanks, have a nice day.